Assignment carries 15 marks, and today we'll discuss, by what time you will be ready to share that. But before you share, because I have to cover a lot of ground today, so that you are well equipped to do the job. Okay? So you have done your ratio analysis in the last semester? Yes. ठीक है, तो फिर मैं इसको repeat नहीं करूँगा, but I'll take you through, all the ratios. Fine? So I'm not going to start from the scratch. So let's look at this sheet, okay? Just we have an overview of the sheet first. Fine. So the first sheet, there is a PPT, there is a Excel sheet, there is a lot of other material. So the first sheet talks about the income statement or profit loss account, okay? So it gives you, the revenue of the company till 2024, September, right? Or maybe TTM. So what do you understand by TTM? TTM का क्या मतलब आप बताएंगे? Okay. So TTM stands for trailing 12 months. Trailing 12 months. So what does the word mean? Trailing 12 months. TTM. तो इसका मतलब आपने कभी स्क्रीनर इधर कभी गए ही नहीं. So you have been just reading from books and all. Okay, fine. So TTM means trailing 12 months. What does it mean? When today we are in 2025, isn't it? I am still hearing a lot of noises, please. So we are in January 2025. So which financial year do we follow in India? March. April to March. Okay. So that means still, January, February, March are still remaining before, the companies are going to make their balance sheet and profit loss account and share. Okay. But all the companies in India, all the companies which are listed in India, they are supposed to share their profit loss account, balance sheet. They have to advertise it. They have to publish it in the newspapers. And there is a SEBI regulation which is called LODR, Listing Obligations and Disclosure Requirement, if I correctly remember it. LODR. Because okay. So LODR is a document or a guideline which has been published by SEBI, which says it's a listing agreement. That means all the companies which are listed on Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, they have certain obligations. Okay? Apart from so many other obligations, they are supposed to publish their quarterly results. They have to give it to the stock exchange and they have to publish. They have to send it, all the shareholders or everybody in the public domain must know how the company has performed. Is that okay? So every quarter, the companies are publishing their results. And now we are in a season in January because December has just closed. So within certain days, 30 to 45 days, all the companies need to announce their results. So already many companies have announced their results. Reliance has also announced the result. So Reliance has announced for 3 quarters, okay? That is April till December, 3 quarters. They have already announced it, okay? And now another quarter remaining. So now this, 2025, 3 quarters, that is Q1, Q2 and Q3, they have already announced it. So if we take 2024 Q4 and add them up, so this figure is called TTM. Trailing 12 months, that means the last 12 months, how the company has performed. Okay, fine. So just look at this number. The number is up to March, it was 8,99,041. 8,99,000 crore. And what is the trailing? 9 crore 39 lakhs. So that means if you compare this with this, so this will have 1 quarter of this and 3 quarters of the current year, current financial year. Okay, that will make 12 months. So if you look at the trailing 12 months, that means Reliance is showing a kind of an increase in their revenue, isn't it? The top line is growing. And if you go to this site, and then you can just easily calculate that yourself, what I'm talking about. So let's go to, or you can just go to this site, screener.com, and say Reliance, and go to profit loss account, okay? So go to quarterly. So companies declaring quarterly. So here we have quarterly statement, quarterly income sales, okay?
So if you take all these numbers from say last 4 quarters, this means we have last year up to March, then this year 3 quarters. So if just add them up 2 crore 36 lakhs, or just say 236 plus 232 plus 231 plus 240, just add the round numbers, and that will be equivalent to the TTM here. Just add 236, 232, 232 and 240. कितना है? 9 lakh 37. So look at this, 9 lakh 39. So exactly it should be 9 lakh. If you add all the numbers, so this TTM is the last 4 quarters. Okay, got it? समझ में आ गया आपको? TTM is what? TTM is trailing 12 months, which means the last 12 months. Now, you know, this number is published in a financial site which is called Screener, where, you know, the prospective investors, they go and find out how the company is doing. So the company has already reported the financial performance up to 2024. Now we are almost like 9 months or maybe 10 months now away from what they announced. So we must know what is the latest number what Reliance is reporting. Is Reliance improving or Reliance is falling in terms of top line, in terms of bottom line, how the company is progressing? Okay. So all the financial sites, they give you a TTM number, and it is must, because the 3 quarters numbers have been announced by Reliance. So they add the 3 quarter number with the last year final quarter number and add them up, it will become again a 12-month number. Is it clear? Yes, sir. किसको नहीं समझ में आया? Just raise your hand. आपको समझ में है? आपको समझ में नहीं है? अच्छा देखो, अभी हमारे कितने महीने निकल गए इस साल के फाइनेंशियल ईयर के? 9 महीने निकल गए, जनवरी को भूल जाओ, अभी जनवरी खत्म होना है. So 9 months have gone. So in 9 months the company has already done business, they have done the sales. So but if you have to say on a yearly basis how Reliance has performed, so we have to make a 12-month number. How much in the last 12 months the company has done turnover? कितनी सेल हुई है पिछले 12 महीने में? कितनी सेल हुई है पिछले 12 महीने में? तो इसका मतलब इस साल के 3 क्वार्टर और पिछले साल का 1 क्वार्टर को जोड़ेंगे तो 12 महीने का रिजल्ट आ जाएगा कंपनी का. Is that simple as that? Isn't it? तो ये किसको चाहिए होता है? Who requires this number TTM? What's your good name? बाकी किसको चाहिए होता है? कौन नहीं देखता है नंबर? अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं, करेंगे कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नंबर चाहिए ना आपको. ठीक है, रिलायंस कैसे काम कर रही है, कैसे बिना इसको देखे हुए कैसे इन्वेस्ट कर लेंगे? ये देखेंगे पिछले 12 महीने में रिलायंस ने कितनी सेल कर ली है. यही नहीं, आपको और भी देखना पड़ेगा. डोंट गेट टू दिस थिंग, आई एम आस्किंग यू. कभी कभी मैं जोर से बोलूँगा, सो डोंट फील अबाउट इट. And I am just, on, because I want that everybody should learn, okay? That's my intention, okay? For the 9 months have passed as of now. Yeah. So we will take up those 9 months and as well as the past 3 months. Past 3 months, पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जनवरी फरवरी मार्च अभी चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च का पिछले क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट और आगे के 9 महीने का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड, वी आर गोइंग टू ऐड. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बाहर जाने के बन रहे हो आप? हाँ, क्या कर लिया? तो ठीक है, वो तो कर लिया, लेकिन बाहर जाओगे अब. से दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग. प्लीज, सिर्फ आपको कुछ समझना है. कुछ किससे पूछ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझसे पूछो तो बेटर है. अगला क्या बताएगा, उसने तो अभी भी ज़्यादा सीखा है, इसलिए मुझसे सीखो, मुझसे पढ़ो. ओके, आपस में भी डिस्कस करो, नो इश्यूज, फाइन, बट remain positive, because I am telling you this subject is going to immensely benefit you. ये आपकी जॉब और ना जॉब के बीच में खड़ा हुआ सब्जेक्ट है. आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने पैसे कमाओगे, इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका सारा दारोमदार टिका हुआ है. अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये कभी काम नहीं आएगी, फिर वापस नहीं आएगी कभी भी. Okay, so please listen, because I come with all practical experience in my life. I have worked in corporate world. I'm an investor. I know each and everything. Of course, nobody can claim to know each and everything, but I have a good idea. So learn from me. Okay, put your best. Fine. I'm not saying I'm a great guy. मैं इसी कहना चाहता हूँ, मुझसे सीख लो जितना मुझे पता है. बाकी आप दूसरे से भी सीखो और खुद भी पढ़ो. Okay, there are a lot of things nowadays available where you can learn a lot of things. But please be attentive. Please listen. Please focus. जो नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछो. Okay.
बट डोंट जस्ट पास अवे योर टाइम लाइक दिस. ओके फाइन, ठीक है, मस्ती मौज करनी है वो तो है ही, हम यू आर यंग पीपल एंड यू टू डू इट, फाइन, दैट्स योर राइट. ओके, सो TTM अब किसको समझ नहीं आया? अब जिसको समझ नहीं आया तो मैं नहीं बताने वाला. ओके, बाकी भी पूछ लेना उससे, चश्मे वाले से. क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? विनय से समझ लेना, उसको समझ आ गया अच्छी तरह से. आ गया ना? ठीक है. ओके, तो एक्चुअली क्या है, FIV इज द गुड ग्राउंड फॉर मी बिकॉज यू नो ऑल द थिंग्स यू आर एब्सोल्युटली नॉट अवेयर ऑफ. तो मुझे समझाने में बड़ा मजा आता है स्क्रैच से. ओके फाइन, सो is that okay? Okay, now let's go back to ओके. तो अब हमारे पास ये रेवेन्यू है, इनकम स्टेटमेंट है, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. जो सेकंड लाइन है प्रॉफिट है कंपनी का. देखो पहले सेल्स फिर एक्सपेंसेस, ये सारी नंबर जो है ना स्क्रीनर से ही लिए हैं. ओके, you can use a pull all the data into the screen from the screener to this Excel sheet automatically. एक स्ट्रोक में सारा कुछ आ जाता है and you are all aware of that. Are you all aware of that? Yes, sir. इतना कुछ पता है फिर क्या मतलब जो है, सिर्फ TTM तो नहीं पता थी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो then this is the margin. Okay, the company's profit margin, ऑपरेटिंग मार्जिन. आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी और 120 में बेच दी तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया. दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ओके फाइन, सो हाउ इज द मार्जिन डूइंग? कंपनी कैसा कर रही है मार्जिन में? मार्जिन जो है बढ़ रहा है फ्रॉम 8% इट हैज गॉन अप टू 17%. फाइन, अगर ये जो स्क्रीन में विजिबल है यहाँ तक तो बढ़ गया. ओके अच्छा, और फिर जो है हमने क्या लिया, एबिडा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर अदर इनकम नॉर्मल. नाउ कंपनी जो होती है वो उसकी अदर इनकम होती है अदर देन व्हाट द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग. जो उसका बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रिलायंस जो है देयर इनटू 5 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अदर इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, कोई दूसरी इनकम है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने उसकी इनकम आ रही है, तो वो आएगा अदर इनकम. तो इसको भी हम क्या करते हैं, अदर नॉर्मल इनकम. नॉर्मल, लेकिन आप स्क्रीनर में जाओगे तो वहां पर अदर इनकम जुड़ी हुई है, नॉर्मल और एक्सेप्शनल. एक तो हो गया जो नॉर्मल इनकम है जो हमेशा रिलायंस कमाती है. ठीक है, सपोज की कोई बिल्डिंग है उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है तो आ रही है इनकम. बट कोई ऐसी इनकम जो कभी कभी कमाती है, एक्सेप्शनल. कोई लैंड बेच दिया रिलायंस ने, वो हर साल तो बेचेगी नहीं, तो वो कहाँ जाएगी, एक्सेप्शनल में. उसमें इनकम भी हो सकती है, उसमें लॉस भी हो सकता है. तो यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा. फिर हम अगर ये निकालते हैं एबिट, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का है, यानी कंपनी अपना जो सामान बेच रही है, प्रॉफिट कमा रही है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इज दैट ओके? देयर ओके. हाँ, ओपीएम बताया ना, दैट इज अ मार्जिन. 100 रुपए का सामान खरीदा, 120 में बेचा तो 20% हुई, तो 20% आ रही है, वहां जगह 8 आ रही है. इज दैट ओके? भाई आपने कोई चीज, आप बिजनेसमैन, आपका क्या नाम है आगे? ग्रासिम को कौन? देखो अगर आप अदर आ गई इनकम तो ये आ गया एबिट. एबिट क्या है? एबिट की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड. सो देन वी हैव इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है? लोन पे जो इंटरेस्ट लिया हुआ है. फिर क्या है? एक्सेप्शनल आइटम्स. ये अदर इनकम का पार्ट था जो मैंने अलग कर दिया, एक्सेप्शनल इनकम्स. क्योंकि एबिट जो है यहां तक कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट है, इसके बाद कंपनी कोई और तरीके से पैसा कमा रही है, वो नीचे दिखाएंगे. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कंपनी अपने बिजनेस में कितना पैसा कमा रही है. अगर आपको कंपनी एक्स और कंपनी वाई को कंपेयर करना है, हाउ मच यू नो विच इज बेटर, तो लुक एट एबिट और एबिट परसेंटेज. ओके, तो उसमें अदर एक्सेप्शनल इनकम नहीं आएगी, वो तो कभी कभी आएगी, तो हम उसको निकाल देंगे, हम नीचे ले आएंगे. तो हमें आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट, फिर अर्निंग पर शेयर, और ये सब आ गई. ठीक है, इज दैट ओके? सो अब इसके आगे भी लुकिंग एट, then we have the balance sheet of the company. So this balance sheet is basically starts with share capital, reserves, total share capital, borrowings, capital employed. तो capital employed क्या है? जो पूरा business में पैसा लगा हुआ है. All the money which has been deployed in the business, whether the company has borrowed or company has got from the equity shareholders, all together. So total capital employed will be all the money which has been invested in the business. Is that okay? Then we talk about the non-controlling interest.
ये पता है आपको कभी? NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। ऐसे तुक्के मत लगाओ यार, अगर पता है तो बताओ। डोंट गैस। ये तो आपके किसी को भी नहीं पता होगा, ये किसी को पता भी नहीं होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम, हार्डली आधा % लोगों को पता होगा, और उन आधे % में आप नहीं हैं, तो प्लीज लिसन हैं। ओके, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं, इसको आप इसको फोकस करो इसके ऊपर। ओके, देखो हमारे यहाँ क्या है, ये जो अकाउंट, ये जो है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। दीज आर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं वापस जाता हूं यहां पर, ये व्यू स्टैंड अलोन। अगर मैं इसको व्यू स्टैंड अलोन करता हूं, अभी फिगर कितनी आ रही है? 9,39,000। हाँ, अभी 5,30,000। कितनी कम होगी फिगर? तो ये क्या फिगर है? ये कंसोलिडेटेड फिगर थी। अब मैं करता हूं व्यू कंसोलिडेटेड। वो आप सब लोगों ने खोले हुए हैं ना, तो इसलिए स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि एक ही जगह से आ रहा है, या मेरे तो नेट अलग है वैसे। ओके, चलो इसमें बाद में जाते हैं। अब आपको मैं बता रहा था देखो मेरी नज़र अभी है, कुछ तो 1-2-3 लड़कियां हैं और 1-2-3 लड़के हैं जो बाहर जाएंगे अभी। ओके, आई एम गोइंग टू सेंड देम अप। ओके, सो दिस इज द लास्ट वार्निंग। अब हम देखते हैं माइनॉरिटी आपका जो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको बोल देते हैं हम NCI, सॉरी NCI। पहले इसको बोलते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट कंसोलिडेट करती है, तो इसका मतलब कंपनी की जो सब्सिडीज हैं, जो कंपनी की ऐसी कंपनी जिसमें रिलायंस ने इन्वेस्ट करा हुआ है, तो या तो कंपनी ऐसी होंगी जिसमें कि मोर देन 50% इन्वेस्ट करा हुआ है। ओके फाइन, से इट कैन बी इवन 100%। तो 100% इन्वेस्टेड है, या 100 से कम है, और या 50 के और 100 के बीच में दरमियान में है, ऐसी कंपनी, वो कंपनी सब कंसोलिडेट हो जाएंगी। अगर एक कंपनी में 50% रिलायंस ने पैसा लगाया हुआ है, उसकी कंपनी की एसेट्स और उस कंपनी की सेल इस रिलायंस की कंपनी के साथ जुड़ जाएगी, समझ गया? तो वो कंसोलिडेटेड हो जाती है। लेकिन अगर सपोज मान लो कि रिलायंस ने किसी कंपनी में 80% इन्वेस्ट करा हुआ है, तो इसका मतलब 20% जो है वो माइनॉरिटी है, वो उसका